Okay, this is the origin. Here is some point P having coordinate x, y and z. Then this vector can be represented as this. We can write this as r vector, and we can write this r vector like x I cap plus y j cap plus z k cap, where I cap is unit vector along x-axis, j cap is the unit vector along y-axis, and k cap is the unit vector along z-axis. Okay, we can find out its magnitude also. R vector magnitude, we can write it simply as r, and it is x square plus y square plus z square whole under the root. Okay, if we want to write the unit vector of r, unit vector of r will be r cap, and it is r vector itself upon its magnitude. We can write any vector, unit vector of any vector, by writing that vector upon its magnitude. So the unit vector of r vector, this vector, unit vector of this vector will be what? X I cap plus y j cap plus z k cap upon x square plus y square plus z square whole under root. Okay, this is r vector, this is its magnitude. So if we divide some vector with its magnitude, we will get the unit vector of that particular vector. Fine. So this is little bit about the vectors. Now we will start Coulomb's law in vector form. We will start Coulomb's law in vector form. So earlier we did Coulomb's law in simplest form. There we get only the magnitude of the force, and that will be 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 upon. This is simply a magnitude. This is not showing any direction. But when we write the Coulomb's law in vector form, we will mention magnitude as well as direction. Okay, with the help, why we are doing Coulomb's law in vector form? Because we have to show that particular force acting in which direction, either from q1 to q2 or from q2 to q1. यानी कि q1 फोर्स लगा रहा है q2 के ऊपर, या q2 फोर्स लगा रहा है q2 के ऊपर, या दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. वी विल कैलकुलेट दैट फोर्स जो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं. ठीक है ना. अब दोनों चार्जेस हैं, तो दोनों q1 q2 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, q2 q1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा. इट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? सपोज एक बड़ा चार्ज है पॉजिटिव, एक छोटा चार्ज है. अब इमेजिन करिए फोर्स कहां से कहां लगेगी. ये भी इसके ऊपर लगा रहा है. कैसी रिपल्सिव फोर्स. ये छोटा सा है, एक बड़े से उसको धक्का दे रहा है, कुछ नहीं होगा. एक बड़ा है, वो छोटे के ऊपर फोर्स लगाएगा. फोर्स कैसी होगी? दोनों पॉजिटिव है तो कैसी होगी? रिपल्सिव. तो ये छोटा जो है इधर को भागेगा. इट मीन्स इस केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये है. ठीक है. दूसरा, छोटा बड़े के ऊपर लगा रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, पर फोर्स तो वो भी लगा रहा है. कैसी है? रिपल्सिव है. वो फोर्स इस तरफ को लग रही है. ठीक है. अगर दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. फोर्स कैसी होगी? ठीक है. ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इधर को होगी. ओके. अब ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी क्या करेगा? इसको खींचेगा.
ये अट्रैक्ट होगा और ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स जो होगी वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ जो है हमें कौन बताता है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फॉर डूइंग दिस you will draw a diagram in which firstly we will draw 3 axes, ओके। अब हमें फिर से वो दो चार्जेस लेने हैं। एक चार्ज होगा Q1, इसका नाम रख दो Q1। दूसरा चार्ज Q2। Q1 एक ऐसे पॉइंट पे है, मान लेते हैं Q1 है पॉइंट A के ऊपर, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। अभी जो मैंने आपको कराया पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का, तो वहाँ पे पॉइंट P था, उसका R ले लिया था। यहाँ पे Q1 चार्ज है जो पॉइंट A के ऊपर है। पोजीशन वेक्टर हमेशा पॉइंट का होगा, चार्ज का नहीं होगा। ओके, तो सिमिलरली द सेकंड चार्ज दैट इज Q2 is at point B having position vector R2। दो पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर भी क्या होंगे? अलग अलग से होंगे। राइट डाउन। कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 at points A and B having position vectors having position vectors R1 vector and R2 vector। Okay, therefore OA vector is equal to R1 vector. This is position vector of point A, and OB vector is equal to R2 vector. This is position vector of point B. Now by Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between the charges Q1 and Q2 separated by a distance small r by Coulomb's law, force of attraction or repulsion between the two charges Q1 and Q2 separated by a small distance small r is
F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square. Okay. Now we will use triangle law of vector addition that you did in class +1 in vectors. What is triangle law of vector addition? If two vectors are represented by both magnitude and direction by two sides of a triangle, then their resultant is given by third side of triangle taken in opposite order. These are in order. Suppose this is A vector, this is B vector, so then this is their resultant. Okay, suppose this is O, this is A, this is B. तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ओ ए और ओ बी, चाहे आप इसको मान लो तो ये रिजल्टेंट मान लेंगे हम, अगर ये कोई भी क्लोजिंग साइड जो होगी वो उन दोनों वेक्टर्स का क्या रहेगी, रिजल्टेंट रहेगी. वही चीज हमने यहां पे अप्लाई करनी है. Write down, let F12, write down F12, look here, F12 is the force exerted by Q1 force exerted by Q1 no, force on Q1. F12 is the force on Q1 due to charge Q2. F12 1 जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, 2 जो फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर लग रही है और ये लगा रहा है. ओके, हम वी विल राइट लाइक दिस, F12 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2. हम ये बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है और ये फोर्स लगा रहा है. ये फोर्स लगा रहा है मीन्स इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी एरो. अगर ये फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन ये होगी. Then next line, then F12 will be equal to वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2. अब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, Q2 से Q1, 1 के ऊपर लग रही है, कहां से लग रही है, 2 से, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आया, ये. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लिखेंगे, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर और बी ए वेक्टर.
बी ए यूनिट वेक्टर बता रहा है डायरेक्शन कहां से कहां, बी से ए की तरफ को। देखो ना यहां पे ये क्या थी, एक्स एक्सिस थी, तो इसकी डायरेक्शन हमें ऐसे तो लग रहा है इधर को है, पर उस डायरेक्शन को बताता कौन है, आई कैप। इसकी डायरेक्शन को कौन बताता है, इसकी डायरेक्शन को कौन बताता है। सिमिलरली कोई भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को उसका यूनिट वेक्टर बताता है, उसकी डायरेक्शन को कौन बताता है, उसका यूनिट वेक्टर बताता है। तो अब हमें निकालना है बी ए, हमें क्या निकालना है, बी ए। तो अब हम जो ट्रायंगल चूज करेंगे वो ट्रायंगल हम इस तरह से चूज करेंगे, ये और ये। मीन्स टू फाइंड बी ए कैसे फाइंड आउट करना है, नाउ बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर निकालना है, पर हमें पता है ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए। ओ बी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ऑर्डर में है। इस ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी होगी, ये होगी, ये इसका क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। ठीक है, तो हमारे पास ओ बी प्लस बी ए, नहीं सॉरी इसको इरेज कर दो, ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए। और यहां से हम बी ए वैक्टर निकाल लेंगे, बी ए वैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ ए वैक्टर, और ये इधर चला जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और है ना, तो माइनस ओ बी वैक्टर। फाइन, फिर से देख लो, मुझे ये बी ए निकालना है। नॉर्मल जो हमने लिया वहां पे हमने इस डिस्टेंस को मान लिया था आर, जैसे हमने यहां पे लिखा, और ये हम उसको जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है बट नाउ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहां पे हम बोल रहे हैं कि फोर्स लगा रहा है कौन, वो चार्ज लगा रहा है, वो कहां पे है, बी पॉइंट के ऊपर है। किसके ऊपर लगा रहा है, ऐसे चार्ज के ऊपर लगा रहा है जो कहां पे है, ए पॉइंट के ऊपर है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, बी से ए हुई। इसलिए हमने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस लिया नीचे, ये क्या लिया, बी से ए लिया, और एरो बता रहा है इसकी डायरेक्शन, और ये यूनिट वेक्टर बता रहा है इस फोर्स की डायरेक्शन। अगर इसको ना लगाऊं तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। हमने यहाँ पे एरो लगाया, मीन्स ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए इसके साथ एक क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हमें ये बी ए निकालना है। बी ए निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in order, then their resultant is given by third side of triangle taken in opposite order. यही थी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आगे चलते हैं। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इस फोर्स की बात कर रहे हैं, ये F12 फोर्स इधर को लग रही है। फाइन, डायग्राम हम कंबाइन बनाते हैं। मैं यहां पे सेपरेट करके बताऊंगा कि F12 फोर्स 2 लगा रहा है किसके ऊपर, Q2 चार्ज लगा रहा है किसके ऊपर, Q1 चार्ज के ऊपर लगा रहा है। तो डायरेक्शन क्या हुई, B से A। ठीक है,
तो हमारे पास अब आ गया बी ए वेक्टर किसके बराबर आ गया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर है क्या, ओ बी वेक्टर क्या है, आर टू वेक्टर है, और ओ ए वेक्टर क्या है, तो बी ए वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। अगर आप इस इक्वेशन में अब आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो इसको ले लो नंबर 1, पुट इन 1, तो व्हाट यू विल गेट, F12 फोर्स ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यहां पे क्या है, बी ए है यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर है, बी ए यूनिट वेक्टर है, सपोज इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर अपॉन बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस चीज को आपने नोट रखना है, ये हम यहां पे डालने जा रहे हैं। तो बी ए वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसकी पावर, मैग्नीट्यूड की पावर 1, कोई नहीं है तो पावर क्या होगी, 1 होगी। Take this as equation 2. This is the force exerted by charge 2 on charge 1. नाउ अब अगला केस क्या आएगा कि फोर्स कौन लगा रहा है, चार्ज 1 लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, चार्ज 2 के ऊपर। तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो जहां बी ए था अब क्या हो जाएगा, वहां पे ए बी हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। लिखिए, नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज तो जिसके ऊपर लग रही है उसको पहले लिखना है, जो लगा रहा है उसको बाद में लिखना है, जैसे यहां पे हमने किया था। जिसके ऊपर लग रही है उसको हम पहले लिख रहे हैं, जो लगा रहा है उसको बाद में लिख रहे हैं। अब किसके ऊपर, वहां किसके ऊपर लग रही थी, 1 के ऊपर लग रही थी, Q1 के ऊपर लग रही थी, अब किसके ऊपर लग रही है, Q2 के ऊपर लग रही है। तो पहले कौन आएगा, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो क्या आएगा हमारे पास, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब डिस्टेंस क्या आएगा, बी ए बी, सॉरी अब डिस्टेंस क्या आएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में यहां पे क्या आएगा, ए बी का यूनिट वेक्टर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए बी
वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है, इसको इक्वेशन ले लो नंबर 3। नाउ टू फाइंड बाई ट्रायंगल वेक्टर एडिशन। अब फिर से हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब फोर्स यहां से यहां ये लग रही है, तो पहले हमने इन दो वेक्टर को ऑर्डर में लिया था, अब हम इन दो वेक्टर को ऑर्डर में लेंगे, ग्रीन कलर वाले। ये और ये वेक्टर ऑर्डर में है और ये इनका रिजल्टेंट होगा। ये और ये वेक्टर ऑर्डर में है और ये इसका रिजल्टेंट होगा। उस केस में क्या था, ये और ये वेक्टर ऑर्डर में थे और ये रिजल्टेंट था। फाइन, तो यहां पे हम चलेंगे, तो ट्रायंगल जो होगी क्या आएगा हमारे पास, यहां से देखिए ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, है ना। ये दो वेक्टर का सम और ये उनका क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ओ ए फाइन। यहां से आप क्या करेंगे, ए बी निकालना है आपको, ए बी निकाल लेंगे, ओ ए को दूसरी साइड ले जाएंगे, यहां पे वो प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। और ओ बी कितना है हमारे पास, आर टू है, और ओ ए कितना है, आर 1 है। कुछ मिस्टेक हो रही है ना। यहां हमने लगा रहा है उसके ऊपर